Good morning, friends. Today, in video number 21, we will discuss civics. That is a part of second section in 13th chapter, and that is the administration of the state. So, we have seen already the section of central government, organs of the central government, function of the central government. Now, see the function of state government. So, first see the definition. State government या state administration is the government of a country subdivision in a federal form of government which share political powers with the national government. It may have some level of political autonomy. So let us see the detail. State government या state administration is the government form of government of country. It is also part of country. Subdivision means state government in a federal form of government which share political power with national government. So you can say that national government and state government, they go parallel and they fulfill their functions, their duties. It may have some level of political autonomy. They have also some political autonomy. Autonomy means they are free to do their own decision or schedule on management according to their local culture, traditions. They can do some separate things or law. Now see the organs. Organs, they are same like central government, legislature, executive, judiciary. It is also big part, means big topic. See here, legislature there are also state legislature, it is also called. Then there are legislative assembly, legislative council and governor. So it is a part of state legislature. In executive, governor is also part of this section, then chief minister and their cabinet. Here there is a judiciary. In judiciary there is a high court and subordinate court. Subordinate court means Khandpit and the district court. Okay, so let us see here. Here in this we will see legislative assembly. In legislature, see legislative assembly. So legislative assembly, same it is and there is also two concept. There is a unicameral and bicameral. Uni means one and bi means two. Okay, uni means one and bicameral means two. So कहने का मतलब जिस स्टेट में एक होती है, मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक हाउस होता है, उसको बोलते हैं यूनिकैमरल. और जिस स्टेट में दोनों होते हैं, दोनों हाउस होते हैं, उसको बोलते हैं बाई कैमरल. ओके, तो वी विल डिस्कस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो सी हियर लेजिस्लेटिव असेंबली. इनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जबकि इसको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, अकॉर्डिंग टू नेम इट इज. अब जो MLAs हैं, इनकी जो मेंबर होते हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन. जिस राज्य की जितनी होती है पॉपुलेशन, उसी के अकॉर्डिंग इनके मेंबर्स भी डिसाइड होते हैं. तो मेंबर मैक्सिमम 500 एंड मिनिमम 60. मैक्सिमम 500 एंड मिनिमम 60 मेंबर्स होते हैं. बट इट इज़ अ थ्योरेटिकल ओनली. इन प्रैक्टिकल में ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी होते हैं. सपोज दैट सिक्किम है आपका और आपका मेघालय है, वहाँ पे 60 से कम है. ओके, यहाँ पे
देन जो अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, यहाँ पे रिजर्वेशन ऑन द बेस ऑफ एसटी एंड एससी मेंबर्स का कुछ होता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जो ट्राइबल्स एरिया हैं वहाँ से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू एसटी एंड एससी पॉपुलेशन। और एक मेंबर किसके लिए होता है रिजर्व, गवर्नर के लिए। किसके लिए, गवर्नर के लिए, क्योंकि एक मेंबर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। ओके, इस तरह से ये हैं। इनका इलेक्शन जो होता है एमएलएज का, ये वैसे होता है जैसे एमपीज का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर भी एक विधानसभा होती है जहाँ से एक मेंबर इलेक्ट होके आता है। तो इस तरह से हर स्टेट एक विधानसभा क्षेत्र में बटा होता है, कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा होता है। इट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन। जहाँ पर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी उतनी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे कम पॉपुलेशन होगी वहाँ पे ये इसकी संख्या भी कम होगी। अब देखिए, ये जो होते हैं मेंबर्स 5 ईयर्स तक के लिए होते हैं। एक बार इलेक्ट होके आए तो कब तक काम करते हैं, लगभग 5 साल। देन यहाँ पे होते हैं स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इनका काम क्या होता है, हाउस को कंडक्ट करवाना। जैसे आपके घर में एक हेड होता है, स्कूल का एक हेड प्रिंसिपल, वैसे यहाँ पे भी एक हेड होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो ये क्या करते हैं, स्कूल हाउस का जो होता है डे टू डे जो भी असेंबली होती है, पूरा शेड्यूल, पूरा जो उनका अरेंजमेंट होता है, सीटिंग अरेंजमेंट, सब कौन डिसाइड करता है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। और यहाँ पे जो गवर्नर का काम होता है, वी विल सी इन सेपरेट हियर। सी द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वही चीज़ है लॉ मेकिंग, जो कि जिसके लिए इसको बनाया गया है, लॉ मेकिंग। सेकंड, फाइनेंशियल अप्रूव करना, जो कि चीफ मिनिस्टर जो बजट तय करते हैं हर साल उसका अप्रूव करते हैं ये। और दे आल्सो फंक्शन इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो ये एक्टिव होते हैं, इनकी असेंबली होती है और ये अपना वोट डालते हैं। ओके, तो इस तरह से ये है लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं विधानसभा का स्ट्रेंथ क्या होगा। जिस प्रकार पार्लियामेंट का हमने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पढ़ा था कि होता है 552 इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स, उसी प्रकार लेजिस्लेटिव असेंबली को भी कुछ कुछ नियम कायदे दिए गए कि कितना यहाँ पे मेंबर्स हो सकते हैं। तो देखिए, ये बेसिक नियम है, एक जनरल नियम कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो है वो आपका 500 होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो जगह होगा उसका 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट्स, एमएलएस जो होते हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन पे डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन कि वहाँ पे कितने सीट्स होंगे। ठीक है, साइज पे उतना डिपेंड नहीं करेगा जितना पॉपुलेशन पे। इसलिए देखते हैं हम यूपी और बिहार, ये सब जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको काफ़ी एमएलएस और एमपीज मिलते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और जो मिनिमम रखा गया है वो 60 रखा गया है। तो मैक्सिमम 500, मिनिमम 60, ये बेसिक रूल है, आपको याद रखना है। तो क्या सारे स्टेट्स में ये फॉलो होता है? तो नहीं, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है, जैसे कि सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, तो यहाँ पे जो है ये 60 नहीं, 60 से भी कम रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ। ठीक है, कहीं 30 हो गया, कहीं उसके हिसाब से रहता है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयर इज रिजर्वेशन ऑफ SCs एंड STs इन विधानसभा। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विधानसभा में रिजर्वेशन है। तो MLAs जो इलेक्ट करके आते हैं उनमें आपको पता होगा कि कहीं कहीं कोई सीट्स होते हैं जो कि SCs और STs के लिए रिजर्व होते हैं, वहाँ पे सिर्फ SC और ST कैंडिडेट्स ही रिस्पेक्टिवली खड़े हो सकते हैं। और ये जो सीट्स हैं ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ऐसा नहीं कि एक जो सीट है वो कॉन्स्टेंटली रिजर्व्ड ही रहेगा, वो चेंज होगा और किसी और जगह को फिर रिजर्व्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पार्लियामेंट में कि प्रेसिडेंट एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है जब उन्हें पता चलता है कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी एक मेंबर लेजिस्लेटिव में गवर्नर रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी।
ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नॉमिनेशन जो हो रहा है इस केस में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का सिर्फ 1 मेंबर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि विधानसभा और जो पार्लियामेंट का लोकसभा उसमें काफ़ी सेम है, इसीलिए जो इलेक्शन ऑफ एमएलएज है वो बिल्कुल इलेक्शन ऑफ एमपी जैसा होगा एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। उसी प्रकार जो स्पीकर होते हैं और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे, पावर भी बिल्कुल सेम होगा, रेजिग्नेशन प्रोसेस सब कुछ सेम होगा एज से लेके, इसीलिए मैं इन सब टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करूंगा। गवर्नर का भी वही सेम रोल होता है जो प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट में होता है, लेकिन हम गवर्नर को पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, जब हम विधान परिषद के बाद नेक्स्ट गवर्नर पढ़ेंगे तो गवर्नर को हम पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन जो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं कि इलेक्शन कैसे होता है या फिर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, पावर क्या है, एज लिमिट क्या है, ये बिल्कुल सेम है जो पार्लियामेंट के लोकसभा के मेंबर का होता है, इसलिए इन टॉपिक्स को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में भी ये जनरली पूछे जाएंगे तो आप एकदम मान के बनाइए जो कि पार्लियामेंट का है। सपोज अगर एज लिमिट पूछता है कि मेंबर ऑफ एमएलए का एज लिमिट क्या होगा कि तो 25 ईयर्स होगा, 25 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नाउ सी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ पर होती है जहाँ पे बाई कैमरल व्यवस्था होती है। ये जो सिस्टम है, ये जो अरेंजमेंट है, ये हर स्टेट में नहीं है। बाई कैमरल जो व्यवस्था है दैट इज इन ओनली 6 states। आई विल गिव यू द रेफरेंस वीडियो। 6 states में इसकी व्यवस्था है, दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश। तो ये 6 स्टेट है जहाँ पे बाई कैमरल दोनों हाउस काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, बाई कैमरल मीन्स जहाँ पे दोनों हाउस एग्जिस्ट होते हैं। ओके, अब ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर इसकी बात करें तो ये कौन करता है क्रिएट? यही लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर इनको लगता है कि नहीं थोड़ा काम ज़्यादा है तो एक और हाउस की आवश्यकता है, तो फिर ये यही बिल पास करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन के लिए। और मेजॉरिटी में पास होने के बाद, 2/3 में पास होने के बाद कहाँ भेजी जाती है? प्रेसिडेंट के पास या पार्लियामेंट के पास। सॉरी, पार्लियामेंट पहले कहाँ जाएगी? पार्लियामेंट में जाएगी। पार्लियामेंट में भी अगर ये बिल पास हो जाता है विद द प्रेसिडेंट, तो फिर यहाँ पे उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन शुरुआत कौन करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ से फिर कहाँ जाएगी? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर लॉ बनने के बाद यहाँ पे ये काउंसिल क्रिएट हो जाएगी। ओके, दैट इज इन द आर्टिकल 368। ये आर्टिकल 368 में प्रोविज़न है। ओके, और ये जो बाईकैमरल का है ये व्यवस्था ये दी गई है पार्ट 6 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में ऐसी व्यवस्था है बाईकैमरल की। अब इसमें मैक्सिमम 300 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 40 मेंबर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 300 और मिनिमम 40 मेंबर्स। बट ये भी क्या है? थ्योरेटिकल है, थ्योरी है। प्रैक्टिकल में इससे कम भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एमएलएज के द्वारा एमएलएज में भी उसको पार्टिसिपेट करते हैं। देन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम है, नगर पंचायत है, गांव के लेवल पे नगर पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नगर निगम, ये दोनों करते हैं पार्टिसिपेट। और इनका लगभग 1/3 मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। इसके बाद टीचर्स, ग्रेजुएट्स जो स्नातक होते हैं, और गवर्नर, तीनों भी लगभग अलग अलग रेशियो में
इनका होता है 112, इनका भी होता है 112 और इनका होता है 1:6 रेशियो में। ये अपने अपने अकॉर्डिंग टू 12 में से एक मेंबर ये, 12 में से एक मेंबर ये और 6 में से एक मेंबर गवर्नर। तो इस तरह से अपने अपने रेशियो में इलेक्ट करते हैं और इस तरह से इन सभी का इलेक्शन होता है। तो इसमें इनके इलेक्शन में ये बाई डायरेक्ट पीपल के द्वारा नहीं होते हैं इलेक्ट, ये होते हैं एमएलए कैसे होते हैं, पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो ये पीपल के द्वारा इलेक्ट ना होके इनके द्वारा इलेक्ट होते हैं। ओके, तो इस तरह से यह खास बात है जो कि ये खास बात इसको इससे अलग करती है। ओके, बाकी फंक्शन सेम है, लॉ मेकिंग में दोनों भाग लेते हैं, फाइनेंशियल अप्रूवल में दोनों भाग लेते हैं, टू अपॉइंट प्रेसिडेंट दोनों भाग लेते हैं। इस तरह से इनका काम वही होता है जो मेन पार्लियामेंट का है, सेंट्रल लेवल पे वही काम है इनका स्टेट लेवल पे। तो ये कुछ बातें हैं लेजिस्लेचर की। ओके, इस प्रकार सेंटर में पार्लियामेंट एक्ट करता है एक लेजिस्लेटिंग बॉडी का, उसी तरह स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है। पार्लियामेंट में जैसे 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह कई स्टेट्स में 2 हाउसेज होते हैं जो कि होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा और विधान परिषद। साथ ही साथ प्रेसिडेंट का रोल यहाँ स्टेट में गवर्नर करते हैं। ठीक है, स्टेट हमने देखा था कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सेंटर जो है वो यूनियन लिस्ट और साथ साथ जो कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअरी पावर्स में एक्ट करते हैं, उसी तरह स्टेट जो है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में एक्ट कर सकते हैं, यानी लॉ बना सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि विधानसभा जो है वो लोकसभा की तरह काम कर रहा था जो कि पार्लियामेंट में है, उसी तरह विधान परिषद जो है ये एक्ट करेगा राज्यसभा की तरह। ठीक है, तो अब एक्ट करेगा राज्यसभा की तरह मतलब क्या, यहाँ पे जो भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेंगे या फिर बहुत कुछ इसका सिमिलैरिटी आपको दिखेगा राज्यसभा से। जैसे राज्यसभा का 6 साल का टर्म होता है, उसी तरह विधान परिषद का भी 6 साल का टर्म रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे मिनिमम एज 30 ईयर्स रहता है, वैसे ही इस केस में विधान परिषद में भी 30 ईयर्स होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब विधान परिषद मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सारे स्टेट्स में नहीं होता है, सिर्फ कुछ स्टेट्स में विधान परिषद है। तो इस क्लास में हम देखेंगे विधान परिषद कैसे किसी स्टेट में लाया जा सकता है या फिर अगर उसमें है तो उसे हटाया जा सकता है, और साथ साथ इनका इलेक्शन कॉम्पोजिशन कैसे होता है। ठीक है, तब देखिए विधान परिषद जो है ये सेकेंड हाउस ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, जिन स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उन स्टेट्स में सेकेंड हाउस जो होता है वो विधान परिषद होता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस होता है आपका विधानसभा। अब टर्म ऑफ ऑफिस मैंने अभी बताया कि 6 साल का होता है, जैसे विधानसभा का 5 साल का होता है, उसी तरह विधान परिषद का 6 साल का होता है, और इसमें भी राज्यसभा की तरह 1/3 एवरी 2 ईयर्स में रिटायर करते हैं। मतलब ये परमानेंट बॉडी है, एक बार में 6 साल के बाद सारे मेंबर रिटायर ना होकर 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो एक मेंबर को 6 साल रहने मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद में। अब लास्ट क्लास मैंने बताया कि 6 स्टेट्स जो हैं जिनमें विधान परिषद एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होने के कारण, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और यूपी। ठीक है, ये 6 स्टेट्स में जो है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अब एक और स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, लेकिन इसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जबकि इनको जो मिला है वो आर्टिकल 370 के स्पेशल प्रोविजन से मिला है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के कई सारे आपको जो नियम है वो डिफरेंट मिलेंगे, क्योंकि उनके पास स्पेशल प्रोविजंस है। जैसे वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होता है उसका भी टर्म ऑफ ऑफिस 6 साल का होता है, जबकि बाकी सारे स्टेट्स में वो 5 साल का होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो स्पेशल प्रोविजंस में आता है आर्टिकल 370 के अंदर। ठीक है, इसलिए लास्ट क्लास मैंने आपको सिर्फ 6 स्टेट्स के बारे में बताया था कि इनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। अगर क्वेश्चन में आपको आए कि कितने स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो उसका आंसर होगा 7, उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, लेकिन ये 6 स्टेट्स को अलग प्रोविजंस के कारण मिलता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जबकि जम्मू एंड कश्मीर को अलग प्रोविजन के कारण मिलता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कई सारे नियम आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है वही रेसिडुअरी पावर्स और स्टेट लिस्ट में एक्ट कर सकता है, जबकि पार्लियामेंट नहीं कर सकता। ठीक, कई सारे पावर आपको दिखेंगे जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पास डिफरेंट है कंपेयर टू ऑल दी अदर 28 स्टेट्स। ठीक है,
तो आपको याद रखना टोटल कितने बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाले स्टेट है 7, ठीक है, लेकिन इसमें जम्मू एंड कश्मीर के पास आर्टिकल 370 के कारण है, जबकि बाकी 6 स्टेट्स का पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसका पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक स्टेट में क्रिएट करना है या फिर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसे अबॉलिश करना है, तो इसका पावर किसके पास है? तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उस स्टेट की, वही अगर चाहे तो उस स्टेट में क्रिएट किया जा सकता है या नहीं क्रिएट किया जा सकता है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज महाराष्ट्र, ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ का विधानसभा है, उसे चाहना होगा कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल आए। उसके चाहने के बगैर ये प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं किया जा सकता है, इसे शुरू ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब उसे चाहने के बाद क्या करना होगा? एक रेजोल्यूशन पास करना होगा स्पेशल मेजोरिटी से, यानी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। इस स्पेशल मेजोरिटी से वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी जो कि क्या होगा? एक रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन होगा फॉर अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसे पास होने के बाद ये जो रिक्वेस्ट है ये पार्लियामेंट के पास जाएगा, ठीक है, और पार्लियामेंट के पास फिर पावर है आर्टिकल 368 के थ्रू कि वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाए, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 368 में क्या मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कैसे किया जाए ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी स्टेट में बना सकती है, लेकिन उसके लिए एक रिक्वेस्ट बाई ए स्पेशल मेजोरिटी रेजोल्यूशन जनरेट करना जरूरी है, ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई रिक्वेस्ट ना दे रेजोल्यूशन पास करके तो पार्लियामेंट खुद के मर्जी से ये नहीं बना सकती, ठीक है। उससे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली को रिक्वेस्ट करना होगा कि मुझे लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए या फिर मुझे लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाना है, ये दोनों के लिए वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकती है, और फिर उसी की मर्जी पे फिर पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का और उसमें लाया या फिर हटाया जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को लाने के लिए, हटाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों से पास होना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में देखते हैं विधान परिषद का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, कौन कौन से मेंबर मिल के विधान परिषद बनाते हैं, ठीक है। तो विधान परिषद का सबसे पहले तो स्ट्रेंथ देख लेते हैं, कितने लोग विधान परिषद में होंगे। तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स किया गया है कि जो विधानसभा है उसका 1/3 से ज़्यादा इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ ना हो। अगर विधानसभा का स्ट्रेंथ 300 है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो स्ट्रेंथ होगा वो 100 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम भी रखा गया कि 40 से कम ना हो, ठीक है। ये एक जनरल आइडिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही फॉलो हो। जैसे कि मैंने बताया कि कई स्टेट्स में 40 ही सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ होता है, तो 1/3 तो उसका 40 से कम हो जाएगा, तो वहाँ क्या फॉलो होगा, ठीक है, तो वहाँ डिफरेंट फॉलो होता है। तो ये एक जनरल कन्वेंशन दिया गया है जो स्टेट्स में डिफरेंट तरह लागू हो सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इसका मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं कि उसमें जो लोग हैं वो चुने कैसे जाएंगे, क्या वो वोटिंग से चुने जाएंगे, कैसे चुने जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि MLAs जो हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो तो डायरेक्ट वोटिंग से सिलेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ के केस में वैसा नहीं होता है। तो यहाँ कैसे पे कैसे इलेक्ट होता है वो देख लेते हैं। तो 1/3 ऑफ मेंबर है, यानी 1/3 जो मेंबर रहेंगे MLC के, वो डायरेक्टली MLAs चुनेंगे, ठीक है, उसी स्टेट के MLA चुनेंगे। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट 1/3 जो है उन्हें कौन चुनेगा? उन्हें चुनेंगे जो लोकल बॉडीज़ है, यानी पंचायत, अगर गांव का इलाका है तो पंचायत, और शहर है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारे मिलकर 1/3 मेंबर्स को चुनेंगे। तो टोटल हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 2/3। अब बचे कितने? 1/3। अब इस 1/3 को भी 3 हिस्सों में बांटा गया, 1/12 और 1/6, ठीक है। अब ये जो 1/12 है इन्हें कौन सिलेक्ट करेगा? इन्हें टीचर्स सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वो टीचर जो है वो हायर होने चाहिए देन द सेकेंडरी स्कूल लेवल, ठीक है। 1/12 जो बचा हुआ है वो कौन सिलेक्ट करेंगे? हमारे जैसे जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, उस स्टेट्स के ही ग्रेजुएट्स होने चाहिए, वो इलेक्ट करेंगे जो उस स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं। 1/12 हो गया, अब बचा 1/6। अब यहाँ जो है ये नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर। अब जो जैसे राज्यसभा का पावर था कि वो कुछ स्पेशल स्किल के लोगों को कर सकते हैं नॉमिनेट, जैसे कि आर्ट साइंस इनसे रिलेटेड अगर कोई लोग होते हैं तो उन्हें नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा में, जैसे सचिन तेंदुलकर को, हेमा मालिनी जी, इन लोगों को किया गया था। तो उसी प्रकार गवर्नर भी अपने स्टेट में MLC को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो याद रखना है आपको, ये पार्ट याद रखना है, कॉम्पोजिशन जो है, यानी 1/3, 1/12, 1/6, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यही एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से आ सकता है क्वेश्चन में। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कंपोजिशन याद रखिए, किन स्टेट्स में है वो याद रखिए,